ओके आज हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, प्लांट्स में किस टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, क्योंकि उसके जेनेटिक प्लांट के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें रिप्रोडक्शन मोड के थ्रू पता चलता है, उसी के बेसिस पे हम उनका ब्रीडिंग मेथड डिसाइड करते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, सो नाउ okay, modes of reproduction and what is apomixis, this we are going to study in this topic. So सबको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बाकी है नहीं ये डिफिकल्ट टॉपिक। ओके, तो सबको बहुत ही अटेंटिव रहना है। नाउ देयर आर फर्स्ट इफ वी गो इनटू द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ब्रॉडली दो प्रकार के रिप्रोडक्शन मोड्स होते हैं प्लांट्स में। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, asexual reproduction में दो प्रकार के आते हैं। there are two types in asexual reproduction. first is vegetative reproduction and the second one is apomixis. okay, ये asexual reproduction में, and in sexual reproduction there are two types, that is autogamy and allogamy. okay, so mainly what is, there are two modes of, broadly there are two modes of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. asexual reproduction में क्या होता है, दो types के होते हैं, vegetative and apomixis. and in sexual reproduction what is autogamy and allogamy. so आज के टॉपिक में हम asexual reproduction कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक we will study about sexual reproduction because it is a main थोड़ा बड़ा टॉपिक है वो। ओके, reproduction actually होता क्या है, what is the definition of reproduction? it is the development of new individuals from their pre-existing ones. मीन्स जो न्यू प्रोजनी, जो हमारी प्रोजनी प्रोड्यूस होती है, टू पेरेंट्स को हम जब क्रॉस करते हैं फील्ड में, देन व्हाट वी गेट इज द प्रोजनी, दैट इज कॉल्ड एज reproduction. okay, so development of a new individuals that are called progeny from their existing ones, that is from parents, is called as reproduction. so this is the definition. now the manner in which they originate is called as modes of reproduction. reproduction क्या होता है वो हमने देख लिया, but what is the modes of reproduction? so the manner they originate, जिस तरीके से वो originate करते हैं, उस manner को हम कहते हैं modes of reproduction. now the vegetative parts of the plants, they are called as roots. जो रूट्स होते हैं वो एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। ओके, दे आर द वेजिटेटिव पार्ट्स like stems, leaves, roots, these are all called vegetative parts of the plant. ये सारा आपने बेसिक बायोलॉजी में पढ़ा होगा। the vegetative parts of the plants, they are the flowers. flowers also comes under vegetative parts. in plants there are two main types of reproduction, वो हमने देख लिया, sexual and asexual. now we will go into the asexual type of reproduction. asexual reproduction में क्या होता है, the new plants they are produced without the help of seeds, means there is no involvement of seeds. without the seeds we can grow these plants. so ये आता है vegetative reproduction में, asexual mode होता है। okay, we do not need seeds for their growth. sexual reproduction में क्या होता है, in sexual reproduction new plants are produced from the seeds. so this is the main difference between sexual and asexual reproduction. asexual reproduction में क्या होता है, it does not involve the fusion of male and female gametes. this is the more technical definition of asexual reproduction, where we do not involve the fusion of male and female gametes. male और female gametes का union और the fusion नहीं होता है asexual reproduction में। okay, a new plant originate from the vegetative parts, मतलब फिर वो plant कैसे grow होगा, उसके एक वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू वो प्लांट पूरी तरीके से ग्रो हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स। ओके, सो देयर आर, नाउ वी विल सी एग्जांपल्स आल्सो, हम आगे देखेंगे। सो ब्रॉडली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज एपोमिक्सिस। ओके, फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड इज एपोमिक्सिस। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है ये भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फर्स्ट इज नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि नेचुरली होता है एनवायरनमेंट में, और सेकंड इज बाय व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैन मेड, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल। ओके, सो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या आते हैं, राइजोम्स, ट्यूबर्स, corms, bulbs, these are the main vegetative parts. okay, so the plants can be grown by these vegetative parts also.
राइजोम में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि जिंजर है, टर्मरिक है, अदरक है, हल्दी है, ये सारी चीजें हम कैसे राइजोम्स के थ्रू ग्रो करते हैं. सेकेंड इज ट्यूबर. ट्यूबर लाइक पोटैटो, बनाना, दीज आर ऑल with the help of tubers they are grown. So this is also a vegetative type of growth. Corn में क्या examples आ जाएंगे, like colocasia, अरबी. It is in the local language it is called as अरबी. Scientific name is Colocasia esculentum. Turmeric का scientific name क्या है, Curcuma longa. Now bulbs में क्या example आ जाते हैं, onions and garlics. These are bulbs. Okay, so नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, राइजोम्स, ट्यूबर्स, कॉर्न्स एंड बल्ब्स. दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. Second type of a vegetative reproduction is stem cuttings and root cuttings. Artificial vegetative reproduction में कौन कौन से आते हैं प्रकार, stem cuttings and root cuttings. कुछ ऐसे plants होते हैं जिनको हम stem cuttings के थ्रू ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे plants होते हैं जिनको हम root cutting के थ्रू ग्रो करते हैं. तो stem cuttings में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि sugar cane, grapes and roses. ओके, रोजेस में स्टेम कटिंग्स ली जाती हैं, शुगर केन में ऑल्सो स्टेम कटिंग्स ली जाती हैं, वैसे कि क्रेप्स में भी यूज की जाती हैं. रूट कटिंग्स में कौन कौन से आते हैं, स्वीट पोटैटो, सिट्रस, लेयरिंग. इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड गुटी, जो कि गुटी मेनली गुआवा में यूज किया जाता है, जिसमें हम पॉलिथीन टेप से रैप करके ग्रो किया जाता है. तो दीज आर ऑल आर्टिफिशियल मोड्स ऑफ वेजिटेटिव reproduction, and they all comes under asexual reproduction, where there is no fusion of the male and the female gametes. Now these are the examples of mainly vegetative propagules. कौन कौन से होते हैं vegetative propagules में आते हैं, runners, suckers, stolons, buds, rhizomes and bulbs. Now this is the picture showing like stem cuttings of rose. Rose में क्या यूज किया जाता है, stem cuttings. मनी प्लांट क्या है, एक क्रीपर है जिसको हम एक स्टेम कटिंग्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं सिंपली. पोटैटो ऑल्सो वी यूज दीज. पोटैटोज में हम पोटैटोज मेनली एग्जांपल क्या, पोटैटो में क्या हो जाता है, ट्यूबर्स यूज किए जाते हैं. उसी तरह जिंजर. And then some of the plants like bryophyllum leaves are also used. Leaves एक नए plant को grow कर सकते हैं, like an example of bryophyllum. And similarly in cactus. Now we will see what is sexual reproduction. Okay, sexual reproduction को हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट नाउ हियर ओनली वी विल सी दैट एक्चुअली व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं प्लांट के जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. नाउ द फ्लावर्स दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. मेनली फ्लावर्स, मेन ऑर्गन कौन सा होता है प्लांट्स में, फ्लावर्स. ओके, स्टेमेंस, फ्लावर्स के अंदर कौन कौन से, इसके लिए हमको फ्लावर के पार्ट पढ़ने पड़ेंगे. Stamens क्या होते हैं, it is the main reproductive part. Like here in diagram if you see, these are the reproductive parts of the flower. Flower के अंदर क्या होता है, ये stamens हैं. Okay, these are the stamens, they are the male organs, whereas carpels they are the female organ. Similarly अगर हम stamens का एक dissection करें, you must have done in your science subject in class +2, you must have done like गुलमोहर का या उसका किया जाता है, कुछ हिबिस्कस का किया होगा आप लोगों ने, उसमें ये पूरी अच्छी तरीके से दिखाते हैं. वेयर स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेंस में क्या क्या अंदर देखा जाता है, एंथर, और ये जो लॉन्ग ये जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड फिलामेंट. ओके, सिमिलरली फ्लावर के अंदर कार्पेल का अगर डिसेक्शन किया जाए तो उसके अंदर ये जो होता है, ये ऊपर का स्टिग्मा है, दिस इज द लॉन्ग, दिस थिंग इज कॉल्ड एज स्टाइल. And inside the ovary, this is the ovary wall, and inside the ovary there are ovules. Okay, so वैसे ही flower का जो है, flower का जो structure है, these are anthers and filament together, they are called as stamens. These things you have to remember. What if I'll ask what is stamens, then you have to say that stamen is the male organ, and what are the structures which are present inside the stamens? There are filaments and anther. वैसे ही stigma, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, पिस्टिल. ओके, एंड दीज आर द पेटल्स एंड दीज आर द सेपल्स, जो कि हमें बाहर की तरफ दिखते हैं, जो नीचे हरा प्रकार हरा होता है, दैट इज कॉल्ड सेपल्स, एंड दीज आर द रेड वन इज कॉल्ड पेटल्स. उसी तरह पिस्टल इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, एंड ovules are present inside the ovary. So these are all the reproductive parts of the plant. Now stamens हमने देखा, it is the male reproductive part, and pistil is the female reproductive part. These are the two main parts of plant.
Flowers which have only the stamens and or only the pistils, they are unisexual flowers. अगर कुछ flowers में सिर्फ stamens होंगे या फिर तो pistils होंगे, they are called as unisexual flowers. Okay, so they are used for cross pollination because उनमें उस plant में सिर्फ एक ही sexual part है, तो हमें दूसरे plant से उसको cross करना पड़ता है. तो examples are maize, papaya and cucumber. Flowers which have both the stamens and pistils, they are called as bisexual flowers. अगर उनके पास stamens और pistils एक ही plant में present हो, then they are called, they can be self pollinated. वो अपने आप ही pollination उनमें हो जाता है. They are called as bisexual flowers because they have both pistils and stamens. अगर उनके पास एक ही होगा, then it is called as unisexual flowers. So bisexual के examples क्या हैं? Rose, mustard, petunia, etc. The stamens have the filaments and anther. The anther contains pollen grains. Anther के अंदर pollen grains होते हैं, which contains the male gametes. And pistil मैंने बताया, pistil has three parts: the style, stigma and ovary. The ovary contains ovules. Ovary के अंदर ovules होते हैं, which are the female gametes. They contain the female gametes or the eggs. In sexual reproduction, the male and the female gamete they fuse together to form a zygote. Sexual reproduction में क्या होता है? Male and female gametes they fuse to form zygote. Then zygote develops into the further organ like embryo sac develop होता है, the female gametophyte develop होता है. Okay, this we have already seen. Now जो एम्ब्रियो सैक की मैं बात कर रही थी, ये चीज मेल गैमेटोफाइट, आप ये फीमेल गैमेटोफाइट देखिए, जो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक को भी कहा जाता है. ओके, अब एम्ब्रियो सैक के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो हमको देखने हैं. दिस इज कैलिजल एंड, ये जो इस एंड को कहा जाता है कैलिजल एंड, एंड दीज थ्री सेल्स दे आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स. ओके, एंड दिस इज अ वैक्यूल. This is the primary cell organelle which you must have known. Now these are the polar nuclei. Mainly total embryo sac के अंदर 8 cells होते हैं. And these are called as polar nuclei. These are called as eggs. Now eggs और synergids को मिला के हम कहते हैं egg apparatus. Okay, and these are the two synergid cells. And this is called filiform apparatus. And this end is called as micropylar end. And this is called as कैलिजल एंड. तो कैलिजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिनर्जिड सेल्स होते हैं और पोलर न्यूक्लियाई होता है. ओके, दिस एग apparatus is there. So these are the two ends of the embryo sac. So this is the diagram of female gametophyte और embryo sac. ये डायग्राम समझने के बाद ही हम नेक्स्ट में जाएंगे. Now we will see what is apomixis. एपोमिक्सिस अभी हमने फर्स्ट देख लिया, वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रकार का होता है, एंड दूसरा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एपोमिक्सिस. नाउ एपोमिक्सिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट हैपेंस एक्चुअली, एपोमिक्सिस इज अ एक्सेप्शनल टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये एक एक्सेप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. सो in apomixis what happens, seeds are formed but the embryos develop without fertilization. Seeds here in apomixis, there are certain plants where the seeds are formed, seeds बनते हैं, लेकिन वो किस तरीके से बनते हैं? Without the fertilization. Fertilization वहाँ पे fusion of male and female gametes नहीं होता है. Okay, so this is an exception of sexual reproduction. This is called as apomixis. Apomixis दो प्रकार के होते हैं, adventive embryony and गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस. एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है? द एम्ब्रियोज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द ओव्यूल. ओके, वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं एम्ब्रियो के, उससे डायरेक्टली एक एम्ब्रियो बन जाता है. ओके, आइदर फ्रॉम ओव्यूल और न्यूसिलस और इंटेगुमेंट और कैल्जा, which we have seen in the female gametophyte, and it does not involve the production of embryo sac. Okay, so examples of adventive embryony are, these definitions you have to remember is mango, citrus and orchids. Whereas in second type of apomixis is gametophytic apomixis. Gametophytic apomixis में क्या होता है? The embryos develop without fertilization from the egg cells. यहाँ पे भी fertilization नहीं हो रहा है. That is, a fusion of the male and the female gamete is not taking place. And other cells of embryo sac. Okay, कोई भी cells के without ही embryos बन रहे हैं. एपोमिक्सिस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स विदाउट द सेक्सुअल फ्यूजन. देयर इज नो, सो दिस you should remember as a thumb rule that in apomixis there is no fusion of male and the female gametes. That is, it is an exceptional to sexual reproduction. Embryos develop without fertilization. Thus apomixis is a means of, जब वहां पे fusion नहीं हो रहा है, then it is a means of asexual reproduction only.
अगेन दो प्रकार के एपोमिक्सिस होते हैं, ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस एंड फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन सम स्पीशीज अकर्स ओनली बाय एपोमिक्सिस, मतलब कुछ स्पीशीज में सिर्फ एपोमिक्सिस के वेस से ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, देन दे आर कॉल्ड एज ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस, मींस उनके पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है। सेकेंड इज फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस में क्या होता है, means in some species sexual reproduction also occurs in addition to apomixis, मतलब apomixis के साथ साथ sexual fusion भी हो रहा है, तो they are called as facultative apomixis. Okay, obligate में क्या होता है, there is only the reproduction takes place by apomixis only, whereas in obligate, in facultative apomixis, in facultative apomixis दोनों टाइप हो रहे हैं, sexual reproduction भी हो रहा है और apomixis के थ्रू भी हो रहा है. Okay, now एपोमिक्सिस को हम ब्रॉडली टू वे में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड द सेकंड वन इज नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस. रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या होता है, जो प्लांट्स जो कि डिप्लॉयड सेल से डेवलप हुए हों. ओके, जो एम्ब्रियो सैक होता है, इफ एन एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम अ डिप्लॉयड सेल, ओके, देन इट इज कॉल्ड एज रिकरेंट एपोमिक्सिस. मींस 2n, डिप्लॉयड क्या होता है 2n एंड हैप्लॉयड क्या होता है n. जब भी कोई प्लांट डिप्लॉयड सेल से प्रोड्यूस होता है, देन इट रिमेन्स स्टेबल इन द नेक्स्ट जनरेशंस, इट रिमेन्स स्टेबल, सो इट इज इजी टू मेंटेन दैट प्लांट. बट अगर जैसे कि रिकरेंट में क्या होता है, द एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड सेल, सो इट इज इजी टू मेंटेन इट फर्दर. Okay, those plants which are developed through recurrent apomixis, they are easily maintained, whereas those plants which develop from non-recurrent apomixis, non-recurrent में क्या होता है, haploid cells of chromosomes involved होते हैं. तो जो plant develop होगा वो haploid होगा, उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, n होगा, तो उसको आगे मेंटेन करना मुश्किल होता है. ओके, सो दे आर नॉट इजिली मेंटेन. सो दो टाइप के हो गए, रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड नॉन रिकरेंट. रिकरेंट में क्या होता है, द एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल्स, एंड नॉन रिकरेंट में क्या होता है, इट डेवलप्स फ्रॉम द हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड दे आर, जब वो हैप्लॉयड सेल से डेवलप होगा तो वो जो प्लांट्स होंगे वो स्टेराइल होंगे. स्टेराइल होंगे मींस दे आर नॉन फंक्शनल. ओके, एंड दे आर डिफिकल्ट टू मेंटेन. नाउ पार्थेनोसिस, गैमेटोफिटिक, यहाँ पे हमने देखा था कि दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज ऑब्लिगेट एपोमिक, फर्स्ट हमने देखा था एडवेंटिव एम्ब्रियोनी दो होता है, और दूसरा गैमेटोफिटिक. अब गैमेटोफिटिक के अंदर और प्रकार आते हैं, टाइप्स ऑफ गैमेटोफिटिक. यहाँ पे आएगा टाइप्स ऑफ गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस कौन कौन से होते हैं. पार्थेनोजेनेसिस, फर्स्ट इज पार्थेनोजेनेसिस, सेकंड इज एपोगेमी, थर्ड इज एपोस्पोरी, एंड फोर्थ वन इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. ये सारी चारों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, तो ये आपको याद रखना है कि एपोमिक्सिस कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं. ये मैंने आपको हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं. नाउ द पार्थेनोजेनेसिस क्या होते हैं, इट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एग सेल्स. ओके, हियर एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द एग सेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब एग सेल से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है बट इट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन. So there are broadly two types, haploid parthenogenesis and diploid parthenogenesis. Haploid में example है Solanum nigra and diploid में Tara capsicum. Apogamy में क्या होता है, the origin of embryo. Here we are talking about the development of embryo only. Embryo develop तो होता है but different cells से develop होता है, ये याद रखना. Apogamy में क्या होता है, gammy means apogamy. Here the origin of embryo from either synergids or antipodal cells. जो आपने एम्ब्रियो साइक का स्ट्रक्चर देखा, जब एम्ब्रियो synergid से डेवलप हुआ या फिर तो एंटीपोडल सेल से डेवलप हुआ, then that is called as apogamy. Okay, here the origin of embryo takes place either from the synergid cells or from the antipodal cells of the embryo sac, or the female gametophyte. It is called as apogamy. Again, these are of two types, apogamy, haploid apogamy and diploid apogamy. Here you just have to remember the example like Allium, Iris and some other species. Similarly, apospory. Third is apospory. Apospory में क्या होता है? The first diploid cell of the ovule lying outside the embryo sac develops into another embryo sac without reduction. Here, first diploid cell of the ovule lying outside the embryo sac develops into another embryo sac. मतलब जो ovule के बाहर जो embryo है वो develop हो जाता है embryo sac में without its reduction in the chromosome numbers. So the embryo then develops directly from the diploid cells without fertilization. Embryo directly diploid cells से develop हो जाता है but there is no fertilization, there is no fusion. Okay, एपोस्पोरी से. तो मेन थिंग आपको यहाँ क्या याद रखना है कि एपोस्पोरी में जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स लाइंग आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एपोस्पोरी. नाउ टू टाइप्स, अगेन
जनरेटिव एपोस्पोरी एंड सोमैटिक एपोस्पोरी, दो प्रकार के होते हैं। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में अभी हमने एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, लास्ट पॉइंट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में फोर्थ पॉइंट था ये, सॉरी फोर्थ पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल्स ऑफ द ओव्यूल लाइंग आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल्स ऑफ द ओव्यूल विच आर लाइंग आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक that belongs to nucellus or integuments is referred to as adventive embryony. Here in adventive embryony, the embryo develops from the cells, from the diploid cells of the ovule which are outside the embryo sac, either the nucellus or the integument. It is called as adventive embryony. मतलब nucellus से develop होगा या फिर तो integument से develop होगा. That is called as adventive embryony. Now here we will see that what is the role of, now we have seen that what is apomixis, what are the different types of apomixis. ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम apomixis को plant breeding में पढ़ते क्यों हैं. Okay, first is because for the rapid production of pure lines. अगर हमको pure lines चाहिए, pure lines क्या होती हैं, they are genetically homogeneous lines. Okay, उनका जो genetic constitution होगा वो बिल्कुल same होगा. एक हम फील्ड में देखें तो हर एक प्लांट बिल्कुल सिमिलर दिखे, हम वैसे ही चाहते हैं ना, पॉपुलेशन तो हम वैसे ही चाहते हैं कि हर एक प्लांट या फिर तो आइदर कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सेम हो. तो फॉर रैपिड प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइंस, हमको प्योर लाइंस को रैपिड प्रोडक्शन के लिए हम एपोमिक्सिस पढ़ते हैं. सेकेंड इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ सुपीरियर जीनोटाइप्स. जो हमने सुपीरियर जीनोटाइप्स आइडेंटिफाई किए हैं कंबाइनिंग एबिलिटी स्टडीज के थ्रू, उनको हम एक मेंटेन करना चाहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर जनरेशन टू जनरेशन. इफ वी वांट टू मेंटेन देम then we study apomixis. Third is for the conservation of heterosis. Heterosis क्या होता है, it is the superiority of progeny over the parents. Parents जो progeny होती हैं वो parents से अच्छा परफॉर्म करें. बेटर ब्रीडर्स तो यही चाहते हैं कि जो हमारे आगे की जनरेशन ऑफ प्रोजेनीज हो वो पेरेंट्स से बेटर परफॉर्म करें. तो हम उसको मेंटेन करने के लिए, आगे वो कम ना हो जाए उनका परफॉर्मेंस, उसके लिए हम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हेटेरोसिस आल्सो वी यूज एपोमिक्सिस. सो दीज आर द मेन रोल ऑफ एपोमिक्सिस इन प्लांट ब्रीडिंग. नाउ टुडे अभी तक जो भी पढ़ा है उसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं. What we studied in the first is types of reproduction. What is reproduction? What are the different types of reproduction? First is asexual reproduction. क्या होता है? The multiplication of plants without the fusion of male and female gamete. Without, here you see without. There is no fusion of male and female gametes. Second is, first is vegetative reproduction. Asexual में दो प्रकार के आते हैं. वेजिटेटिव में डिफरेंट वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स वी यूज, लाइक राइजोम्स, ट्यूबर्स, कॉर्न्स, बल्ब्स, रनर्स एंड suckers. With the examples also we have seen here. Second is artificial. Artificial मतलब man made, जैसे कि stems, root cuttings, grafting, budding, layering, etc. Apomixis क्या होता है? ये भी एक asexual reproduction है. It is an exceptional to sexual reproduction. Apomixis क्या होता है? Development of embryo without the sexual fusion. Apomixis दो प्रकार के होते हैं, apogamy and apospory. Adventive embryony भी इसी में आता है. Apogamy क्या होता है? Embryos develop either from the synergids or the antipodal cells. Okay, so these are the parts of female gametophyte or the embryo sac. Apospory क्या होता है? Embryo develops from the diploid cells of another embryo sac developed from other diploid tissue. Okay, adventive embryony क्या होता है? Embryo sac originates directly from the diploid cells belonging to either the nucellus or the integument's. फिर हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स बाय फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोज. ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे. मेनली इसमें क्या होता है, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स. तो यहाँ पे परफेक्ट एम्ब्रियोज, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोज बनते हैं. ये भी दो प्रकार के होते हैं, ऑटोगेमी एंड एलोगेमी. ऑटोगेमी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सीड्स बाय सेल्फ पॉलिनेशन. लाइक जो बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जिनके पास मेल और फीमेल हैं, उन प्लांट्स में प्रेजेंट है, तो सेल्फ पॉलिनेशन करके ही वो सीड्स प्रोड्यूस कर देता है. दे आर, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी. ऑटो मतलब सेल्फ. ओके, इससे आप याद रख सकते हैं. ऑटोगेमी मींस डेवलपमेंट ऑफ सीड्स बाय सेल्फ पॉलिनेशन एंड एलो मींस डिफरेंट. ओके, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स बाय क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज वो प्लांट्स के पास सिर्फ एक ही फीमेल, एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन करके सीड्स प्रोड्यूस करते हैं. दे आर कॉल्ड एज एलोगेमी. So these are the different types of sexual reproduction. तो आज का टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं. Now we'll move on to the discussion.
डाउट्स आप लोगों को जो है वो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम फैकल्टेटिव एपोमेक्सिस को फिर से बताइए। फैकल्टेटिव एपोमेक्सिस